Hi everyone, if you can see me and hear me clearly, please show a thumbs up. Okay, great. So it's exactly 4 o'clock. Let's start. Welcome to this introductory workshop by Shri Tara. इस introductory workshop में आपका स्वागत है. I'm Surbhi Khurana. I've done my master's in maths. I've always had a keen interest in human nature, behavior, and psychology. I think I inherited it from my mother, since I always saw her reading and watching shows related to this. I had issues and problems with my parents, like every other teenager. That's when I did a program where I got all answers to all my troubling questions related to human behavior and emotions. क्योंकि मुझे इससे बहुत फायदा हुआ, मैं naturally चाहती हूँ और लोग भी इसका फायदा लें. Hence, I'm working with Shri Tara School of Wellbeing to help others get rid of their stress, anxiety, and anger issues. Now, let me tell you a little bit about our team. We're a group of mentors who have come together to help you have a better experience of life. That is, have clarity of life. और हम ये कैसे करते हैं? It's a very simple and systematic process. पहले हम आपसे जो भी आपके प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं वो लिखने को कहते हैं और हम जो आपको जवाब देते हैं वो बेस्ड होते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस पर. That is, we tell you what we do or did for ourselves. We don't give you do's and don'ts. We basically show you all sides of the issue and you develop an understanding and awareness. All mentors at Shri Tara have done this program and worked on their own problems first. Now, let me tell you a little bit about our founder, Mrs. Shanti Pahwa, who's also my mother. She has done her MPhil in mathematics. She's a retired associate professor of Delhi University. To fill her void of loneliness, she worked for many committees at her college. She was also the bursar of her college for a few years. She had taken care of yearly budgets and yearly investments amounting to crores, but she was not happy or satisfied in life. वो समय निकालकर बहुत philosophers, thinkers and gurus को भी पढ़ती थी और वो astrologers, counselors के पास भी गई, पर she was never satisfied with any of the logics or answers given by them. She could not use them practically. It would temporarily give relief, but it was not a permanent cure. By the age of 50, that is, in 2005, she was stressed, depressed, and confused, and wondered why virtues like patience, positive thinking, etc., were not working for her. Then she did this program under her mentor, RC. Once she got rid of all her issues, she naturally started mentoring other people. Now our team says this with full conviction and in all honesty that any relationship issue or self-doubt cannot be suppressed. Nor can you cure it by fighting, ignoring, or by making any commitments to yourself. We cry over our issues, punish ourselves or others, but none of these methods are actual cure to the problems. शांति पावा अपने प्रॉब्लम से निकल पाई और उन्होंने सोचा वो क्यों ना अपना एक्सपीरियंस दूसरों से शेयर करें और दूसरों को भी मदद करें अपने प्रॉब्लम से निकलने में. इस वेबिनार के एंड में हम आपके क्वेश्चंस आंसर करेंगे. So you can start typing your questions in the chat. If you want to ask privately, you can just WhatsApp us your questions and we will not disclose your name or any detail and answer anonymously in our next webinar. Also, we would love to know which city you've logged in from. Please type in the chat box which city you are logging in from. So I see Ayush from Delhi, Udisha from Faridabad, people from Ghaziabad, Delhi, Sydney, Deepthi from Delhi, Sachin from Noida. Great. So this is great. Now over to Shanti Pawa. हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
प्लीज। ओके, गुड। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। हम सभी को लगता है कि हम बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छे ही बने रहना चाहते हैं। हम किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहते। ये अलग बात है कि हम फिर भी एक दूसरे का दिल दुखा ही देते हैं, पर चाहते तो नहीं है। ये नाते, ये रिश्ते जीवन भर चलने वाले हैं, खासकर लाइफ पार्टनर के साथ, माँ बाप के साथ और बच्चों के साथ। भले ही बच्चे साथ रहें या कहीं बाहर चले जाएं, चाहे उनकी शादियां हो जाएं, आना जाना, कंसर्न रखना चलता ही रहता है। और एक दूसरे के प्रति प्यार या घृणा या दोनों ही साथ साथ पलते रहते हैं। एक दूसरे के काम भी आना और एक दूसरे के दिलों का दुखाना छूटता नहीं है। पेरेंट्स के मनों में बच्चे सरफेस पर ही रहते हैं। माँ बाप सिर्फ अपना पक्ष देखते हैं और बच्चे सिर्फ अपना ही पक्ष देख पाते हैं। और मन के स्वभाव के संबंध में बहुत कुछ अनसोचा और अनदेखा ही रह जाता है। हम आज बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, और इसके लिए हम पहले बात करेंगे कि मन और जीवन की समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, और फिर बात करेंगे कि किया क्या जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ही पूछती हूँ कि कौन कौन से ऐसे विचार हैं जो आपके मन में हर वक्त चलते रहते हैं। सोचिए, आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए, जब तक बच्चे छोटे होते हैं यानी डिपेंडेंट होते हैं, हमारे दिल और दिमाग पर बच्चे ही छाए रहते हैं। आज सभी के लिए पेरेंटिंग बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मैं कहती हूं कि ये पेरेंटिंग कोई आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये रिलेशनशिप इशू ही है। और अगर आपने रिलेशंस को डील करना सीख लिया तो पेरेंटिंग तो उसी का एक पार्ट ही है। और रिलेशंस यानी रिश्ते, रिश्तों के मामले में हमारे मन में 3 तरह के विचार चलते रहते हैं। पहली वो बातें जो आप कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं, कहते भी हैं तो बात कम्युनिकेट होती नहीं है। उन अनकहे विचारों से आप सप्रेस्ड या सफोकेटेड महसूस करते हैं। दूसरी वो बातें जो आप कहना नहीं चाहते पर कह देते हैं, उससे आपको गिल्ट होता है, पछतावा होता है। फिर तीसरी वो बातें, वो शब्द जो आप अपने बारे में दूसरों से सुनना नहीं चाहते, उन बातों को सुनकर आप हर्ट होते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी बातों को गलत समझ लिया गया है। और इन 3 तरह के विचारों के पीछे आपके कोई ना कोई अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं। आपके पास जितने भी पैसे हों, फैसिलिटीज हों, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो, आप कितने भी फन लविंग हो, इन सब के बावजूद आपके मन को ये विचार परेशान तो करते ही हैं। अब आपको लग सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम हर वक्त परेशानी जीते हो, हम एंजॉय भी तो करते ही हैं। क्यों लगता है ना आपको ऐसा? असल में हर इंसान सारे काम कर लेता है, मौज मस्ती, मूवी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, शॉपिंग, और इन सब में तुम बहुत एक्साइटेड फील करते हो, तुम्हें बहुत मजा आता है। एंजॉयमेंट के नाम पर तुम्हारे पास यही एक्साइटमेंट के मोमेंट्स होते हैं जो कि 10-20 तरीकों से तुम्हें मिलते हैं, जैसे कि खेलने से, फूड से, सेक्स से, म्यूजिक से, या मूवी देखने से, या दोस्तों के साथ बैठकर गपशप लगाने से और ड्रिंक करने से। पर फिर भी ये लिमिटेड सी चीजें हैं और ये मन के लिए एक्साइटमेंट वाली स्टेट है, ये हमेशा बनी नहीं रहती। ऐसे ही परेशानी भी एक ऐसी स्टेट है जो हमेशा तो नहीं रहती, पर फिर भी परेशानी की स्टेट तुम्हारे मन में लंबे टाइम तक बनी रह सकती है, क्योंकि मन में तुम उन विचारों को सोचते रहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तभी तो किसी ने कहा है कि दर्द मुझे ढूंढ ही लेता है रोज नए बहानों से, वो हो गया है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। पर तुम जब खुद को व्यस्त कर लेते हो तो ना तो सुख वाला एक्साइटमेंट होता है, ना ही परेशानी वाली स्टेट होती है। इसलिए तुम्हें रिलीफ महसूस होता है, लेकिन वो भी मन के आराम की स्थिति नहीं है, वो हमारा एक टेम्परेरी रिलीफ का पीरियड होता है। तो तुम्हारी 3 तरह की स्थितियां चलती रहती हैं, या तो एक्साइटमेंट वाले एंजॉयमेंट की स्थिति, या फिर दुख परेशानी की, या खुद को बिजी रखने की स्थिति। तीनों ही स्थितियां मन के आराम की या मन की सहजता की स्थितियां नहीं है। मन का आराम या सहजता की स्थिति तभी संभव है
जब आपके मन में कोई भी अनरिजॉल्व इश्यूज ना हो, यानी आप अपने हर इश्यू को रिजॉल्व कर पाए। आप रोजमर्रा के सारे काम कर लेते हैं, लेकिन इश्यूज पर कोई बात नहीं कर पाते। वो इश्यूज वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि पता ही है कि बात करने से बात उखड़ जाएगी या फिर सामने वाले को बुरा लग जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोग किसी ना किसी तरह से सिचुएशंस तो डील करते ही हैं। क्या आप बताएंगे कि आप कौन कौन से तरीके लगाते हैं सिचुएशंस को डील करने के लिए? थोड़ा सोचिए। आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। खैर, आप 3 तरीकों से सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी आप दबा लेते हैं खुद को, कभी आप दबा लेते हैं दूसरे को, कभी आप लड़ाई कर लेते हैं, कभी आप दूरी बना लेते हैं। यहाँ दूरी यानी फिजिकली आप भले ही पास पास हैं, लेकिन मन से दूरी बना लेते हैं और काफी बार कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए या सदा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। पर आपके ये तीनों तरीके यानी सप्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्टेंस पेनफुल होते हैं और ये काम नहीं करते। और उसके बाद आप 2 काम करते हैं। पहला, मन को दिलासा देना कि कोई बात नहीं ना, उसने कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया। या फिर बुरा तो आपको लग रहा होता है और गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है, पर खुद को दिलासा देने के लिए आपको कोई शब्द ढूंढने से नहीं मिलते। फिर ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ी देर को अंदर ही अंदर या बाहर भी रो लेते हैं और दूसरा काम करते हैं खुद को व्यस्त करने का, या अपना गम गलत करने के लिए 1-2 पैग लगा लेते हैं। लेकिन ये सब टेम्परेरी उपाय हैं। जैसे ही आपका दिमाग खाली होता है, यानी हाथों से भले ही आप काम कर रहे हो, पर मन में चलने लगता है कि क्यों ये मेरे अपने मेरी बात नहीं समझ रहे, क्यों ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से ये निकल गया, क्यों चाहकर भी मैं अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती, क्यों होती है मुझे घुटन, क्यों होता है गिल्ट, क्यों लगता है अकेलापन, अधूरापन या खालीपन। क्या मेरी ही किस्मत इतनी खराब है? क्या आप लोग रिलेट कर रहे हैं मेरी इन बातों से? अब तक मैंने आपको 2 बातें बताई। पहली तो ये कि समस्याएं क्या हैं, और दूसरी ये कि आप उन समस्याओं के लिए क्या करते हैं। अब आती हूं इस बात पर कि किया क्या जा सकता है। करना क्या है, इस सवाल के साथ साथ सवाल ये भी है कि कौन बताएगा, किससे पूछा जाए। और अगर मैं कहती हूँ कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको लग सकता है कि कैसे विश्वास करें कि आप जो बताएंगे वो काम करेंगे ही। हम आपसे ही क्यों पूछे? क्योंकि इंटरनेट पर हर प्रश्न का जवाब मौजूद है, और फिर यूट्यूब पर भी तो हर टॉपिक पर इतने इतने लोगों की वीडियोस रोज अपलोड होती हैं। इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, गुरुज हैं। आप अपना प्रश्न यूट्यूब पर सर्च में डालें तो सैकड़ों वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं। कंफ्यूजन होता है कि क्या सुने और क्या छोड़ें। यूट्यूब और सोशल मीडिया के अलावा दोस्त और रिश्तेदार भी हर समस्या का हल बता ही देते हैं। पिछले कुछ सालों में कई बातों को आपने जाना भी होगा, माना भी होगा, फायदा ना होने पर उन्हें व्यर्थ समझकर छोड़ा भी होगा। या फिर ये भी सोचा हो सकता है कि जो सुना था, पढ़ा था, वो ठीक तो था, पर कमी शायद हम में ही थी कि हम कर नहीं पाए। यानी अब तक जो पढ़ा सुना, या तो वो आपके योग्य नहीं था या फिर आप उसके योग्य नहीं थे। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? मेरी नजर में जिन्होंने भी पूछा और खोजा, या कह सकते हैं जिन्होंने भी समझना चाहा, बेसिकली उनके 2 ढंग रहे। पहला, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए श्रेष्ठतम ज्ञान की खोज। दूसरा, अपने उन निजी प्रश्नों के उत्तरों की खोज जो आपको सदा बेचैन रखते हैं। हो सकता है आपको लगे कि बात तो एक ही है, चाहे हम श्रेष्ठतम ज्ञान को खोजें या अपने प्रश्नों के उत्तर खोजें। इसी खोज को ही तो ज्ञान की खोज कहेंगे। जल्दबाजी ना करें, फर्क बारीक है। अगर आप श्रेष्ठ ज्ञान को खोज रहे हैं, तो आपकी हालत ऐसे व्यक्ति की है जो एक बड़े से डिपार्टमेंटल स्टोर में खड़ा है, जिसके पास पैसे भी हैं, परंतु लाना क्या है वो उसने सोचा नहीं। एक आध बार तो ऐसा ठीक है, लेकिन आप बार बार इस तरह करते रहे तो पता नहीं आप क्या लेने आए थे और क्या ले जाएंगे। आपके घर का क्या हाल होगा? 8 पैकेट मक्खन के होंगे, ब्रेड होगी नहीं। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में फालतू सामान भरा है, मगर हम अपनी नासमझी से
अपने को फालतू सामानों से भर तो सकते हैं, ऐसा ही तो करते हैं हम। जब हम जीवन की बेहतरी के लिए, बेहतर ज्ञान की खोज के लिए किसी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम शब्दों को इकट्ठा करते हैं, अच्छे अच्छे कोट्स नोट करके रखते हैं, और जो जीवन में कभी काम नहीं आते। मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्या यही नहीं करते आप? देखिए, मेरा मन हो या आपका मन, ये मन हर बात स्वीकार कर ले, ये बात ही असंभव है। हाँ ठीक है, क्षण भर को कोई बात किसी को ठीक लग भी सकती है अगर बात को रीजंस देकर कहा गया हो, लेकिन मन ऐसे स्वीकार नहीं करता। मन अपनी समझ से जीता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि पति पत्नी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। वो बात को एग्जाम्पल्स देकर और इंटरेस्टिंग बनाकर इस ढंग से कहता है कि लोगों को दिल से लगता है कि बात तो ठीक है, और लोग ताली बजाते हैं। उनको लगता है कि बात कितनी बढ़िया है, कितनी सही बात है। तो वो उनकी उस मोमेंट की एक्सेप्टेंस होती है कि हाँ, बात तो यही ठीक है। सभी उस वक्त दिल से ये बात सुन रहे होते हैं और मान भी रहे होते हैं, और मन ही मन एक प्रतिज्ञा से भी करते हैं कि हाँ, आज से हम यही करेंगे। लेकिन सिचुएशन आते ही सब धरा का धरा रह जाता है, और फिर इंसान सोचता है कि मैं तो करना चाहता हूं इज्जत, पर ये मेरा स्पाउस ही बेवकूफ है, इसकी इज्जत की ही नहीं जा सकती। या फिर सोचता है कि ये हो तो सकता है, पर मैं नहीं कर पा रहा, और जीवन वापस उसी ढर्रे पर आ जाता है। और ये हम सभी का अनुभव है कि ऐसे जीवन में बदलाव आता नहीं है। जब हमारे मन को ये भूल दिखती है कि हम बिना लिस्ट बनाए कुछ भी सामान उठा लाते हैं, और दिखती है अपने ही उपायों की व्यर्थता कि अब तक जो किया उससे कोई फायदा नहीं हुआ, तभी हमारा मन अपनी समझ के दायरे से बाहर निकलने की बात को सोच पाता है। मैंने भी देखा है अपनी ऐसी भूलों को, अपने उपायों की व्यर्थता को देखा है, और अपनी समझ के दायरे से बाहर निकलकर पूछे हैं अपने प्रश्न, और उनके उत्तरों के तौर पर मुझे दिखाए गए उन समस्याओं के कारण और उनके रूट कॉज। और अब हमारी एक टीम है जो इस दूसरे ढंग से बता रही है कि हाउ टू लिव अ ट्रबल फ्री लाइफ। और अगर आप भी दूसरे ढंग से खोज रहे हैं, यानी आप खोज रहे हैं अपने उन प्रश्नों के उत्तर जो आपके मन को सदा बेचैन रखते हैं, जो आपके निजी प्रश्न हैं, जैसे बुद्ध के 3 प्रश्न थे, बीमारी क्यों होती है, बुढ़ापा क्यों आ जाता है, और तीसरा प्रश्न था कि क्यों हो जाती है मृत्यु। आपके कितने प्रश्न हैं? शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। इस दूसरे ढंग से खोजने की शुरुआत करने का मतलब है कि आपको अपनी समस्याओं की लिस्ट तैयार करनी होगी, यानी अपने प्रश्नों को साफ साफ देखना होगा, उन्हें लिखना होगा, भले ही आपके प्रश्न कैसे भी हों, छोटे हों, बड़े हों, साधारण हों, असाधारण हों, पूछने में थोड़ा संकोच लगता हो, लेकिन यदि वो स्पष्ट हैं, यदि वो आपके निजी प्रश्न हैं, यदि वो गिनती के प्रश्न हैं, तो समझना आपने एक स्पष्ट शुरुआत कर दी। भले ही आपको अपने प्रश्नों के जवाब नहीं पता, लेकिन आपके मन में समस्याओं का धुआं नहीं है, कुछ गिनती के प्रश्न हैं। अब आपको अपने प्रश्नों का पता है, उनसे होने वाली बेचैनी का भी पता है, और आपके लिए सही जवाब वही है जिससे आपकी बेचैनी मिट जाए। डोंट यू थिंक सो? अगर उत्तर मिल गए फिर भी बेचैनी नहीं मिटी, तो समझना उत्तर ठीक नहीं है, या कम से कम आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे उत्तर को पकड़ने से बेहतर है कि आप फिर किसी और से पूछें। बड़ी स्पष्ट स्थिति है कि आप बेचैन हैं क्योंकि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। ये स्थिति उस स्थिति से बेहतर है जहां आपको अपने प्रश्नों का पता ही नहीं, लेकिन उत्तर आपको मिल चुके हैं। और अब एक तरफ तो आप उन पाए गए उत्तरों का अपने प्रश्नों से तालमेल बिठाने का तनाव झेल रहे हैं, दूसरी तरफ आप नए नए उत्तरों की तलाश में फिर से कुछ वैसा ही ज्ञान खोज रहे हैं। फिर पुराने ज्ञान का क्या करोगे? पुराने उत्तरों को कहाँ छोड़ोगे? पुराने उत्तरों के हिसाब से जो जीने की आदत डाल ली, उस आदत से कैसे निजात पाओगे? जैसे कि हर कोई तुम्हें कह देता है कि धीरज रखो, धीरज का फल मीठा होता है, लेकिन कितना धैर्य रखा जाए, कब तक रखा जाए, ये तो कोई बताता नहीं। ऊपर से ये भी बता दिया जाता है कि अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनाहगार होता है। तो धैर्य रखते रखते कब अन्याय सहने वाले हो गए, ये तो पता ही नहीं चला। फिर होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कि क्या करें, धैर्य रखें या अन्याय ना सहकर कुछ बोलें। अब किया क्या जा सकता है?
आप बताएं कि क्या किया जा सकता है। देखिए, किया ये जा सकता है कि आप पूछें अपने प्रश्न, कुछ दिन चले हमारे साथ, हर बात सुनने के लिए राजी हो जाएं, समझें, विचार करें, अनुभव करें, फिर आपका अनुभव ही तय करें कि समस्याएं दूर हुई या नहीं, आराम मिला या नहीं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे आपको विश्वास दिलाया जाए कि हमारे उपाय काम करेंगे ही। आपका अपना आराम ही प्रमाण बनेगा कि हाँ, हम सही जगह पर हैं या नहीं, क्योंकि आपके मन के आराम को आपसे ज्यादा और आपसे पहले कोई और नहीं जान सकता। और आपको डाउट होना बहुत नेचुरल है, उसे साथ चलने दें। वो डाउट तब तक रहेगा जब तक आपको अपनी समस्याओं के उपाय मिल ही नहीं जाते। समाप्त करने से पहले एक आखिरी बात, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम सभी मौज मस्ती और मजा चाहते हैं, लेकिन जीवन भर प्रयास करने के बावजूद भी क्या हम मौज मस्ती करते हुए जीवन जी पाते हैं? जीवन में जो भी हमारे पास है, क्या हम उसका पूरा स्वाद ले पाते हैं? अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आपको कहीं से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इसके कारण क्या है, इसमें रुकावटें क्या है? इसी के बारे में आपको बताएंगी हमारी टीम मेंबर इरा वर्मा। ओवर टू इरा। थैंक यू शांति मैम। नमस्ते सभी को। क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? ओके, ग्रेट। श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं इरा शांति मैम की बात को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे मौज मस्ती और मजे से जीने में क्या रुकावटें आती हैं। पहली रुकावट है कि हम सब खुद को कुछ खास और कुछ अलग समझते हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी फैमिली, मेरा स्पाउस, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा एनवायरनमेंट दूसरों से अलग और खास है। एक उम्र तक मैं भी अपने आप के बारे में कुछ ऐसा ही सोचती थी। हम सब अपने दुख की व्याख्या भी कुछ ऐसे ही करते हैं, जैसे कि मैं बहुत कमजोर हूँ, या मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ, या मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हूँ, या मुझे जवाब देना नहीं आता, या मैं कम एजुकेटेड हूँ, या कुछ भी ऐसा ही। तो हम एक तरह से हमें लगता है कि अगर हम ऐसे ना होते तो हम ज्यादा खुश होते और फिर हमें इतनी किसी की सुननी ना पड़ती। कहने को तो हम अपनी ही कमी कहते हैं, लेकिन असल में कोई भी व्यक्ति अपने आप में अपनी कोई ऐसी कमी नहीं देखता जिसे सुधार कर वो खुद ही चीजों को ठीक कर सके। इसलिए हमें लगता है कि हालात तो तभी सुधरेंगे जब हमारे आसपास के लोग सुधरेंगे, यानी कि हम तो कुछ खास हैं और हमारे जीवन में सुधार का काम भी कुछ खास ही तरीके से होगा। लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू मुझे दिखा कि मैं एक साधारण से साधारण जीव हूँ। इस धरती पर मेरी कोई विशेषता नहीं है, केवल उपयोगिता है। जैसे कि एक डॉक्टर की भी होती है और एक रिक्शे वाले की भी होती है, लेकिन हम खुद को अलग देख लेते हैं। अलग से मतलब है कि हम खुद में एक ऐसी अच्छाई देखते हैं जो हमें दुनिया के तमाम लोगों में नहीं दिखती, और दूसरों में ऐसी बुराई देखते हैं जो हमें कभी खुद में नजर नहीं आती। तो कोई जब कहता है कि मैं तो आम आदमी हूँ, तो उसमें भी वह खुद को खास ही दिख रहा होता है, जबकि इस धरती पर कोई खास नहीं है। रियलिटी तो ये है, नथिंग मेक्स यू स्पेशल, नथिंग मेक्स यू सुपीरियर और इंफीरियर, एंड नथिंग मेक्स मी स्पेशल, नथिंग मेक्स मी इंफीरियर और सुपीरियर। खास हम है नहीं और हो सकते भी नहीं, तो फिर हम क्यों खुद को दूसरों की तरह बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं? जरा सोचिए इस बात को। दूसरी बाधा है कि प्यास का ना होना। एक्चुअली तीन तरह के सुनने वाले होते हैं। पहले वो जिन्हें सिर्फ क्यूरियोसिटी होती है, चलो देखते हैं ये क्या बता रहे हैं। दूसरे वो जिन्हें सिर्फ नॉलेज इकट्ठी करनी होती है, उन्हें लगता तो है कि हाँ आप बात तो सही कह रहे हो, पर अभी हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। तीसरे वो जिन्हें सच में प्यास होती है, वो छटपटाते हैं कि बस कहीं से भी पता चल जाए कि हमारी समस्याएं कैसे हल हो सकती हैं, तो हम तुरंत ही उस काम में लग जाएंगे। तुम कहते तो हो कि हाँ प्यास तो हमारी भी है, समस्याएं तो हम भी हल करना चाहते हैं, लेकिन लगाते ही बात साफ हो जाती है कि प्यास नहीं है। और मन के आराम तक पहुंचने के लिए प्यास का होना बहुत जरूरी है। प्यास न होने का एक कारण और भी है कि हम सबको लगता है कि हमें तो सब कुछ पता है, तो दूसरा हमें क्या ही बता देगा। तीसरी बाधा है कि उचित मात्रा और उचित दिशा में प्रयास न करना। अगर कोई एक व्यक्ति एक आराम तक पहुंच सकता है, तो ये इस बात का प्रूफ है कि हर व्यक्ति उस आराम तक पहुंच सकता है। लेकिन हमारी कमजोरी होती है कि हम चाहते तो है आराम पाना, पर उसके लिए जितने एफर्ट्स करने की जरूरत होती है हम वो नहीं करते। और असफलता का एक ही अर्थ है कि सफलता के लिए की गई कोशिश में कुछ कमी का रह जाना। हम ये चाहते हैं कि हमें सब मिल जाए, पर करना कुछ ना पड़े, पर हमें मिलता उतना ही है जितने की हम मेहनत करते हैं।
और हाँ, फिर हमारी एक आदत और भी होती है कि हम हर काम को टालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी तो घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, या अभी मदर इन लॉ बीमार है, या अभी फेस्टिवल सीजन है, या अभी कोविड फैला हुआ है, या अभी बच्चों के एग्जाम है, बच्चे घर पर हैं, या कुछ भी ऐसा ही। तो हम सोचते हैं कि जब सब परफेक्ट होगा लाइफ में तब इस काम को करेंगे। तो लेकिन वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता लाइफ में। ये मैं आपको इसीलिए कह पा रही हूँ कि मैं भी बहुत समय तक रुकी रही, लेकिन अब लगता है कि मैंने पहले ही इस काम को क्यों नहीं करा, क्योंकि इस काम को करने के बाद मुझे लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट में बहुत क्लैरिटी मिली और हर सिचुएशन को डील करने की एक नई अंडरस्टैंडिंग मिली। तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि आइए जुड़िए हमारे साथ और पाइए अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन। थैंक यू, मुझे बस इतना ही कहना था, और अब मानसी आपको बताएंगी कि इस काम को कैसे करना है, यानी हमारा प्रोसेस क्या है। Hi guys, can you hear me? Give me a thumbs up. All right, good. Okay, hi, I'm Mansi, and I've done my master's in computer application and worked for 8 to 10 years. Before I became a parent, and I had an imagination that parents is bliss, peace, unconditional bonding, and all those fantasies. You know, you have one child, your fantasy doesn't come true, and then you have another one, and it still doesn't come true, and then the hell break loose. फिर ये सवाल आता है कि ये पेरेंटिंग करते कैसे हैं? So I went through something similar to that, and there were no clear answers. I was finding it really tough, and I kept on wondering how easy it seems for others. Well versed with many parenting books, none could help me. Rather, I got more confused between ideal and the real situations. And after doing this program, parenting became clear. Not only parenting, but the other aspects of life, which I never questioned for the sake of not troubling my mind, also became clear. Now, let me tell you about this process. This is a different type of program. This is a rare work. Whatever you learn here is completely different from any other work. That is why the way of doing this process is completely different from other programs. ये difficult work नहीं है, different work है. अच्छा सोचो, अब तक हम क्या करते आए हैं? You know, आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, इंटरनेट पे सर्च किया होगा, लिसन टू स्पीकर्स, पर इन सब से क्या आपको मन का आराम मिला? क्या आपकी मन की हर उलझन खत्म हो गई? नहीं, हुई होती तो आज आप मुझे नहीं सुन रहे होते। आप वही सुनना चाहते हो जो आपको पहले से ही पता है, और अब तक आप वही सुनते आए हो जो आपको पहले से ही पता है। But with all these things, you did not got any solutions to your problem. For your whole life, you've been asking for solutions of same old problems. Your questions are as they were a few years back. But if you work here in the way we want you to, you will definitely find the solutions to your problems. To get something different, you have to do something different. First of all, you have to write your troubling questions. Then we will send you some simple instructions which you have to follow during this course of program. Then you will be given written or recorded material as answers related to your questions. You have to read or listen to them and summarize them and send us back and tell us what you have understood. Now, how we are different from others? यहाँ हम आपको पेशेंस, एडजस्टमेंट, टॉलरेंस नहीं बताएंगे. ये सब सेपरेशन टेक्निक्स हैं. Here we work on root cause. That is why we also call it education of root cause. When you know the root cause, only then you will come out of your internal conflict and external conflict, and everything will get clear. It will be so clear that you will not need to ask anybody. And the next question you might be thinking, why should you trust us? Well, your mind will certainly doubt. It is natural and justified because there are so many people around us to tell and ask, and many cheat also. And there are very few people who will tell you the reality. Because when I needed someone, I did not have anyone. By chance, I got to know Shanti Baba and learn from her. So yeah, that's about it. And now we'll be taking a few questions from the chat box. हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, गुड. अब जैसा मानसी ने कहा कि हम आपके प्रश्नों को लेंगे, आप क्वेश्चंस को लिया जाएगा. इससे पहले कि हम लोग आपके प्रश्नों के उत्तर दें, यानी आपके क्वेश्चंस को आंसर करें, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगी. देखिए, आपको यहाँ पर उत्तर नहीं चाहिए, उपाय चाहिए. समस्या आपकी खत्म होगी जब आपको उपाय मिलेंगे. इसको ऐसे समझिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी कमर में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप डॉक्टर से कहते हैं कि मेरी कमर में दर्द है, मैं परेशान हूं.
तो डॉक्टर आपसे सवाल पूछते हैं कि एग्जैक्टली कितना दर्द है, कहाँ दर्द है, और आप लेटते हैं तब दर्द ज्यादा होता है या बैठने से ज्यादा होता है। कुछ प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर और आप उनके जवाब देते हैं। फिर डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं जिस पर दवाई लिखते हैं, कुछ परहेज भी बताते हैं, डूज एंड डोंट्स बताते हैं, और फिजियोथेरेपी के लिए भी कहते हैं या घर में एक्सरसाइज करने को कहते हैं। तो ये एक सारा प्रोसेस होता है जिससे आपकी कमर के दर्द का हल निकलता है, आपकी कमर का दर्द ठीक होता है। और ये तुरंत नहीं होता, इसमें टाइम भी लगता है। ऐसे ही हमारा मन भी हम एक अंग है, अगर इसमें परेशानी है तो आपको टाइम लगाकर प्रोसेस फॉलो करके काम करना होगा, तभी आपको अपनी समस्याओं के सॉल्यूशंस मिलेंगे। उत्तर तो आपको बहुत मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंटरनेट पे भी उत्तर बहुत होते हैं, आसपास वाले लोग भी आपको उत्तर दे देते हैं, आप खुद को भी अपने आप को भी उत्तर दे ही लेते हैं कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया, फिर दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो उत्तरों से आपका कोई समस्या हल नहीं होती, उत्तर तो आपको कोई भी दे देता है। तो एक्चुअली आपको चाहिए उपाय, और उपाय के लिए समय लगाना होता है। जैसे कि अभी मैं देख रही थी, किसी ने स्क्रीन टाइम का क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि these days kids classes are happening online and otherwise also they use a lot of screen, so how can I reduce their screen time? अब देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत लोग पूछते हैं, डिफरेंट फॉर्म में पूछते हैं, थोड़ा फर्क होता है क्वेश्चन में, और इंटरनेट पे आप खोजेंगे ना जाके यूट्यूब पे, आपको बहुत से उत्तर मिलेंगे, लेकिन इससे आपका उपाय नहीं होता, आपका प्रश्न वही रहता है, वो मिटता नहीं है। फिर कहीं उत्तर मिल रहा होता है, आप चले जाते हैं उसका उत्तर लेने के लिए। तो उत्तर मिलने से कुछ नहीं होता है, आपको उपाय चाहिए। उत्तर तो आपको कोई भी दे देता है, और उत्तर के लिए आपको काम करना होगा। तो अभी तो आपके पास समस्याएं हैं, उनके उत्तर भी हैं, पर आप उन उत्तरों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। फिर आप चाहते हैं कोई ना फटाफट कुछ ऐसा बता दे जिससे ये हमारी समस्या खत्म हो जाए। देखिए फटाफट और इंस्टेंट तो उत्तर हो सकते हैं, उपाय नहीं। तो एक तरह से तो कहें तो उत्तर दिए ही नहीं जा सकते, पर फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं आपकी समस्याओं के रेफरेंस में ये बताने की कि हमारी सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है। इसीलिए ये पहला क्वेश्चन स्क्रीन टाइम वाला जो किसी का आया हुआ है, तो हम लेते हैं, इसका जवाब देंगी आपको हमारी टीम से सुरभि, जो खुद एक 9 साल के बच्चे की मदर हैं और जिन्होंने इसको हैंडल किया इस समस्या को। ओवर टू सुरभि। Hi guys, if you can hear me and see me clearly, please show me a thumbs up. Okay, great. So the question is how to manage screen time for kids, especially COVID times में. So सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी that you have to see these are different times. You cannot treat them like pre-COVID. अब सब कुछ ही online है, be it studying, entertaining, even socializing. So you cannot restrict your child to just 1 or 2 hours of screen time a day, like maybe you used to before COVID. Also, आपको देखना होगा, there are so many benefits of screen time as well. There are such good videos available online that a very difficult concept, which sometimes your child's teacher might not be able to explain that well in class, is explained very clearly over a video. Also, be it YouTube, Netflix, PlayStation, ये सारे ही addictive हैं. I myself am guilty of binge watching shows, and that is because people making it are professionals, and it's their job to make it so entertaining and good that you don't want to stop watching them. All this said, I don't mean कि let your child be on screen all the time. नहीं, it certainly affects their physical and mental health. One does need to move and exercise or do a certain amount of physical activity to be healthy. In fact, अगर आप एक certain amount की physical activity नहीं करोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी. So talk to your child, tell him the importance of having a hobby. Try out different physical activities with your children. You yourself know if you sit at a position for more than 45 minutes or an hour, your body becomes stiff. So you must get up and move around and stretch a bit. For all this, you have to spend time with your children first by talking to them about all this, and then your children should see you doing something other than screen. Your child should see you giving importance to your health. As kids learn more by seeing what their parents do
rather than listening to what their parents tell them to do. मतलब बच्चे वो करेंगे जो वो आपको देखेंगे करते हुए, ना कि जो आप उनको बोलेंगे करने को. और बच्चों को सिर्फ ये बोलना काफी नहीं है कि इतना स्क्रीन टाइम मत करो. आपको उनको इंटरेस्टिंग ऑप्शंस देनी होंगी, which are other than screen. You can play board games with them, read with them, listen to music, dance, join an exercise class together. There is so much you can do. Me and my son, who's almost 9 years old now, we do online exercise classes together in the lockdown. Also, see, you are responsible for your child till he becomes an adult. So till then, you have to and can clearly tell them that you must do, say, 2 hours of physical activity, and only then your child will be allowed to have X amount of screen time. और क्योंकि आप पेरेंट हैं, तो आप ही को देखना होगा कि ये फॉलो हो. Hope this answer helps you. Now the next question we've got is, I'm taking this up from the chat box. I feel my parents were not good at parenting, but I want to parent my child in the best possible way. What should I do? कोई mentor इस question को लेना चाहेगा? Yes, Surbhi, I would like to take that. Sure, Yeah. over to You Mansi. can hear me. You can hear me, right? Yeah. All right, all right. So, well, you feel that you're aware of the fact that your parents didn't understand parenting well, and you at least know what's not to be done. Then you're living in a big, big misunderstanding. All of us at some point in time have felt that this is what our parents should have done with us when we were at this or that stage of life. But do you see that your children, whatever the age may be, thinks the same about your parenting? They also feel that, you should alter your way of parenting. So let me give you an example. Your child could say, "Mummy, आप तो हर चीज का ज्ञान देते हो." और आपको लगता होगा कि बेटा हमें तो ये सब किसी ने बताया नहीं था, and we are giving your life experience to you. You can also feel that you are more adaptable than your parents in accepting your children's boyfriends, girlfriends, or friends, whatever they are. But your children, are they satisfied? Now you might feel that this is the best and ultimate I've done for my kids, and they are not even valuing it. So I would say कि आपको best पता ही नहीं है. The way you feel that your parents didn't know what's best for you, they also feel the same for you. अब आप अपने बचपन को याद करो. क्या हमें ऐसा नहीं लगता था कि हमारे माँ बाप को हमें ऐसे या वैसे पाल लेना चाहिए था? Remember that feeling of grudge against your parents for certain things? This is exactly what your child feels. If as kids, if as kids you judge your parents, then why can't they? In fact, आप में से अभी भी अपने पेरेंट्स लोग, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को जज करते हो. So till now you could see how, so till now you could see that, बच्चों से बात कैसे करना है, क्या बोलना है. But the question is कि अब करें क्या? Try and understand kid will never ever be satisfied with your parenting. No matter how cool, uncool, paranoid, helicopter, super friendly parent you are, it doesn't matter to them. It's like a Tom and Jerry relationship. And this is because उनकी parenting उनके according नहीं होती है और हो भी नहीं सकती है. अगर होती तो उसे parenting तो नहीं कहते. So obviously they will have complaints, resentments, and you become a bad parent according to them. And आपके लिए आपके parents. So now you know parents and बच्चों में disagreement क्यों होता है. But this doesn't mean आपको parenting के सारे aspects पता है. Some, and you are confused on many. कहीं मेरे ये कहने से तो नाराज नहीं होगी. अच्छा फिर ये नहीं करते, फिर क्या करें? All these confusions जो होती हैं वो नहीं होंगी if you understand all the dimensions of parenting. फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये कहूं कि वो. In this program, we will walk you through all the dimensions of parenting. This maybe sounds an intense workshop, but we will laugh at a universal plane as well. I'm going to read out now few questions which we have received during the session. But due to time constraint, we will take up these questions in our following webinar. So these are I am unable to convey my point of view neither at work or home. I am misunderstood by people. What can I do about it? And the second one is my husband tells me about my little expenditures, which are not much, and whereas he spends and wastes so much on expensive things and he's not accountable.
So yeah, as I said, these are the two questions which we'll be taking in our next webinars. We'll be having a series of 12 sessions starting from next month. And if you want us to address your questions, you can drop a WhatsApp message. And in our subsequent sessions, we'll be taking up those. We'll be sharing the details and reminders for the session on the same WhatsApp group. These sessions are all absolutely free. With this, we come to an end of the seminar, and we will see you all next month. If any one of you want to share anything with us, please feel free to do so here, or you can share it on our WhatsApp. Thank you for your time and attention. Hope you find this webinar worth your while.